Welcome students in the class of physics of standard 9. हम लोग इस समय फिजिक्स क्लास में हैं and we have to discuss a topic today, equations of motion. In fact, इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन किया था जो किसी बॉडी के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एंड टुडे वी ऑब्जर्व दैट व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन दोज फिजिकल क्वांटिटीज थ्रू these equations that describe a motion of the body. In fact, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज किसी बॉडी के मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर जनरली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी. बट अंडर दिस टॉपिक we have to discuss what are the relationship between these physical quantities through these equations, through these three equations. यहाँ पे जो three equations mention किया गया है इसके थ्रू हम देखेंगे कि उन physical quantities में क्या relation है, how are they related to describe the motion of the body. First one is V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus half AT square. And third one is V square is equal to U square plus 2AS. All these three equations are said to be equations of motion. यहाँ पे जो भी अल्फाबेटिकल लेटर मेंशन किया गया है वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. Like U represents initial velocity of the body, V represents the final velocity of the body, A represents acceleration, S for the distance traveled, and T for time. So these are the alphabetical letters which represent those physical quantities, and all these letters are mentioned here. तो इन सारी इक्वेशंस के थ्रू डिफरेंट आइडियाज हम लोग के बॉडी के मोशन से रिलेटेड गैदर करते हैं और इस यूनिट में हम लोगों को इन सारे इक्वेशंस को डिराइव करने की जरूरत है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन इक्वेशंस को डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड के थ्रू. तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं उनको वन बाय वन डिराइव करने की जरूरत है और यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया जा रहा है. These equations can be derived on velocity time graph. This is a graph. This axis shows the velocity of the body and this is represented time, and this graph is the velocity time graph. यहाँ पे body का initial velocity u and final velocity v दिया गया है जो represent करता है AC v को, and OD represents u. The time taken to change the velocity is the t which represents OA. तो ये जो x एक्सिस के तौर पे कंसीडर करते हैं ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है and this is the y axis represents the velocity. So this graph is the velocity time graph, and velocity time graph पे जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे that is v is equal to u plus at. So you know acceleration is the change of velocity with
in unit time, that means rate of change of velocity is acceleration, जिनको velocity time graph पे ये slope dc के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे मेंशन है कि on the velocity time graph slope dc represents the acceleration of the moving body, and acceleration के लिए ये जो slope है that is represented by a ratio CB and dV, that means CB by dV represents the acceleration of the body on the velocity time graph. Acceleration को जनरली हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, so the a is equal to CB को क्या मेंशन किया जा सकता है, CB ये लेंथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CA माइनस BA। CA यानी AC से AB को माइनस किया है, then we get CB। तो CB के अल्टरनेटली CB को अल्टरनेट वे में AC माइनस AB लिखा जा सकता है, एंड DV आर मेंशन। तो A इज इक्वल टू AC के लिए वैल्यू है V एंड AB के लिए है U, V माइनस U, एंड DV यहाँ पे OA जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, since DV is parallel to OA, that is the value of DV is also T, so A is equal to V minus U by T। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V minus U is equal to A into T, AT, and V is equal to U। साइड अपना चेंज करेगा तो इस कंडीशन में माइनस यू बिकम्स प्लस यू प्लस AT। दिस इज द इक्वेशन वी गेट V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन हो गया है। दिस इज द वे ऑफ डिराइविंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू AT। सिमिलरली सेम ग्राफ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, यहाँ पे देखेंगे कि इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को डिराइव कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनफैक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एरिया हमारे पास होना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो भी इनक्लोज्ड फिगर है उसका एरिया बॉडी के डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस दिस इनक्लोज्ड एरिया, दिस इज रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ द बॉडी। तो जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो भी ग्राफ हम ऑब्टेन करें उसमें जो भी इनक्लोज्ड एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ enclosed figure on distance on velocity time graph, velocity time graph, and you know distance traveled is represented by s। यहाँ पे हम लोग इस पूरे शेप को दो पार्ट में देखें तो where we have a triangle, this is a triangle and second one is rectangle। ये enclosed shape दो ज्योमेट्रिकल शेप को कंसिस्ट किए हुए हैं। one is the triangle DBC and second one is rectangle DOAB। तो इन होल एरिया को दो शेप के एरिया के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। S is equal to area of triangle DBC
plus area of rectangle DOAB, then S is equal to, for the area of triangle, 1/2 into base into altitude. This is the formula for calculating the area of triangle. यहाँ पर भी area of triangle के लिए formula यूज करेंगे, 1/2 into base dB into altitude CB प्लस रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ here OA and breadth OD, length into breadth, that means OD into OA. Therefore S is equal to 1/2 into dB का वैल्यू यहाँ पे है T और CB, इनफैक्ट CB जो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है V माइनस U, एक्चुअली ये आया कैसे है, तो A से C तक का जो length है that is represented by V and DO is U, that means AB is U, so CB can be calculated by subtracting AB from AC. तो AB के लिए यहाँ पे V है, AC के लिए यहाँ पे V है, AB के लिए U है, so CB can be mentioned as V minus U. तो dB के लिए T यहाँ पे मेंशन है, CB के लिए वैल्यू V minus U and plus OD U into OA T. S is equal to 1/2 into T. V minus U को इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन of motion. जनरली हम लोग जानते हैं V is equal to U plus AT, therefore V minus U is equal to AT. यहाँ पे देखें V minus U is equal to AT है, तो इस V minus U के लिए वो AT यहाँ पे मेंशन किया जाएगा प्लस U into T UT. S is equal to half AT into T AT square plus UT. इनको अरेंज करके लिखेंगे, S is equal to UT plus half AT square. This is the equation we get through this method. यहाँ पे S is equal to UT plus half AT square मैच कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए भी हम लोग इसी ग्राफ का यूज करते हैं, वहां भी डिस्टेंस ट्रैवल का यूज किया जाता है फॉर डिराइविंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन स्लाइड चेंज किया जाता है वहां पे। तो किस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. डिस्टेंस ट्रैवल, यू नो, distance traveled is represented by the shaded region of the velocity time graph. velocity time graph का जो भी shaded region है, जो enclosed figure का एरिया है, वो distance travel को शो करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में देखा है। तो distance travel is equal to area of shaded region on velocity time graph. velocity time graph पे जो shaded region है, that is the
enclosed figure of this graph, इसका एरिया डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस ट्रैवल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के केस में देखा था कि सेम कंडीशन यूज कर रहे थे, बट वहाँ पे हमने किया क्या था कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को कॉम्बाइंड मोड में लेके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया गया था। बट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए यहाँ पे इनको दो सेक्शन में डिवाइड करके एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि ये अगर DOAC ये शेप देखा जाए तो दिस इज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट करता है। सो वी यूज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हियर, S इज इक्वल टू एरिया of trapezium DOAC। यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में एरिया को डिवाइड करते हुए कॉम्बाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साथ ट्रेपेजियम का यूज करके एरिया कैलकुलेट किया जाता है। सो S इज इक्वल टू, यू नो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए फॉर्मूला है 1/2 into sum of parallel sides। सम ऑफ पैरेलल साइड्स के केस में देखें तो इस ट्रेपेजियम में यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दैट मींस पैरेलल लाइंस DO एंड CA। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस DO प्लस CA इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज टेकन एज हाइट, तो वो है यहाँ पे OA। तो S इज इक्वल टू हाफ, DO का वैल्यू है U प्लस CA इज द V इनटू OA के लिए T। यहां तक आने के बाद हम देखेंगे क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। V चाहिए तो है हमारे पास, U है, U की भी जरूरत है, S है हमारे पास, इसकी जरूरत है। इस इक्वेशन में T नहीं है, दैट मीन्स कि T को कन्वर्ट करना होगा किसी अदर फॉर्म में जिससे हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तो इसके लिए अगेन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि V माइनस U इज इक्वल टू AT। इसको मेंशन कर सकते हैं V माइनस U, T को इस साइड लाएंगे तो V माइनस U बाई T इज इक्वल टू, या T के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T। फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे T का वैल्यू कैलकुलेट किया है V माइनस U बाई A, एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ T इन दिस इक्वेशन to remove T, because T is not needed for this equation. So S is equal to 1/2 U plus V into T के लिए वैल्यू है V minus U by A। यहाँ पे एक केस देख रहे हैं U plus V and V minus U, इसको V plus U भी कहा जा सकता है। तो अलजेब्रा का थर्ड आइडेंटिटी है A plus B into A minus B, A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. This is the third identity of algebra, and using this identity we can calculate as V plus U into V minus U is equal to V square minus U square. So S is equal to 1/2 into V square minus U square by A। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A को S के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट V square minus U square is equal to 2 into A, 2A into S, 2AS। By cross multiplication method we get V
v square minus u square is equal to 2as. Therefore v square is equal to minus a square साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा प्लस u square plus 2as, and this is the third equation of motion. तो ये था ग्राफिकल मेथड्स जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट हम लोग इस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू.